ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰਸਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਿਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੈਠ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬੋਲ ਪਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਸਲੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਗੱਡੀ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਪੀੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਿਆਦਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਣ ਧੁੱਕਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਦੋਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਬੁਕਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੋਧੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੀਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੋਸ ਦਾ ਨਿੱਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਗੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਬਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਨਵਮਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਗੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਉ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਦਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਕੇ ਮੋਲ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ
कि अज साडे विच वो जज्बा भी खत्म होंदा जा रहा। कुछ समा पहला जतन कीता सी ब्योंतबंदी ढंग दे नाल तुहाडे उत्ते कुछ अज हथियार चलाए जा रहे हैं। अज आपां किते पटने ते हजूर साहब तो तुरदे सी, पंजाब की धरती ते पहुंचते सी। अज आपां कल्ले पंजाब की धरती ते वापस रह गए। भावें मुल्क आजाद आ पर साडे पवित्र तख्त उन्हां दोहां तख्तां च भी सीधी दखलअंदाजी जे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल करना अफसोस ना कहना पैंदा ते गुस्सा भी करते आ। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब जी ने एक आदेश जारी किया कि साहिबजादे शहादत दिवस मनाया जाए। एग्जैक्टिव ने भी मता पास करके दिता और ये सारा कुछ मीडिया भी आया। दिल्ली कमेटी सिंह साहब को चिट्ठी उल्टी लिख दी है कि बाल वीर बाल दिवस मनाया जाए। ये अज आपां देखना पऊ कि दिल्ली तख्त वालियां दी गल चलू जां श्री अकाल तख्त की गल चलू। हमेशा श्री अकाल तख्त साहब तो जिहड़ा भी संदेश आया कौम ने सिरे मते खिड़े मते मनिया ताकतवर होए। उस समय दी सरकारां तुहानूं वरतणगियां। वीरों मैं तुहानूं निमरता सहित बेनती करना, कोई गवाह नहीं बनाना चाहता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र सिद्धांत के लड़ ला के उस अकाल तख्त साहब जी के हुक्म के उत्ते हमेशा प्रफुल्लता के नाल अपना जतन दईए, जतन करिए, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ भी दईए। पिछले समय दौरान हरियाणा कमेटी का ਵੱਖਰਾ एक एक्ट बन गया। उस एक्ट के जो सानू खालसा सी, जो असीं महसूस करते सी, वो साडे भरा आ। असीं हरियाणा के वो भी सिख साडे वीर आ, चाहे मद्रास ते तमिलनाडु वास्ते वो भी साडे वीर आ। पर जिथे सानू कोई बंडी पाउण दा यतन करू उत्थे फर्ज बनदा श्रोमणी कमेटी के सेवादार का वो सानू इस गल तो सचेत करे। उदों भी सचेत कीता सी, एक फार्मूला भी दिता भई आपां एवें एवें हो के अकाल तख्त दी ताबेदार आईए। पर अज जंग हार के अज सरकार सफल हुई। वो जिहड़े बंदे कहंदे सी असीं प्रधान आ, अज वो मुड़ श्री अकाल तख्त से जगदीश सिंह झीडे नूं मैं उन्हां नूं बधाई दिना जिहड़ी अकाल तख्त दी सरपरस्ती जाके बोली। दूजे भी अज तत्पर आ। इहो साडा मुंडला सिद्धांत आ। गुरु घरां दे प्रबंध खालसे को चाहिए आ। गुरु घरां दे प्रबंध खालसे ने हमेशा कीते आ। ते जे दूसरा कोई आके इहदे विच दखलअंदाजी करे, खालसा बर्दाश्त नहीं करता। निमरता सहित बेनती करना खालसा पंथ नूं कि आपां श्री अकाल तख्त साहब का पवित्र सिद्धांत ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ जी ने बख्शिश कीता सी, हाले भी दुनिया बेरन का कुछ नहीं बिगड़िया। अपने इतिहास के नाल जिहनूं आपां खराब करन दा यतन कर रहे, उदों भी आपां किसी मेले में दखलअंदाजी नहीं करन देनी। कोई अकाल तख्त की मर्यादा का उल्लंघन करन दा यतन करे, वो भी सिख रूप दे विच वो भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सनिमर बेनती करता समूचे पंथ नूं, श्री अकाल तख्त साहब महान है, कह भी दिने सिख पंथ की शान है। शान तो है ही है, पर शान तुसीं बनाउणी आ। जे आपां ख्वारियां दे विच बंढे पै गए, फिर तुहानूं वढण वाले तां भाई सानूं मारनगे, फिर उन्हां दा कोई कसूर नहीं रहिंदा। फिर आपां अपने आप दे आप दुश्मन बनदे आ। भरा मारू जंग कोई भी नहीं चाहता। श्रोमणी कमेटी हमेशा तुहाडे नाल, कोई देश के कोई विदेश के विच किते लोड़ होवे, किते आवाज मारो तुहाडे नाल आ। उत्थे हरियाणे दे विच भी तुसीं साडे भरा आ, दिल्ली दे विच भी भरा आ। पर जिथे तुसीं थोड़ा बहुता आले दुआले होवोगे, फिर तुहानूं कहण दा भाई अधिकार भी आ। सो गुरु साहब किरपा करन। सिरमौर जथेबंदी कह के आपां मुद्दा ला लैंदे आ, पर सिरमौर जथेबंदी तां ही आ जे बैठ के प्रेम ते प्यार दे नाल दो लत्तां दा सहारा छड्डीए, सरहद वालों बढ़िए। तो मैं अंत दे विच तुहानूं सारिआं नूं जिथे अज इस पवित्र उस सुनहरी पन्नियां दे विच जिहड़ा इतिहास लिखिआ और लखां की तादाद कोई बन के नहीं तुसीं आए। 16 दसंबर को मैं देख रहा, पहला भी आया, जिवें बगीरा घट के तुसीं आउणे आ। तुहाडे जज्बे नूं सलाम आ। गुरु साहब जी दीआं ओह पवित्र दो लाते जिगरां नूं सलाम आ। माता गुजर कौर जी नूं सलाम आ।
जिन्होंने इतने पवित्र इतिहास लिख के थानू हर साल 28 तरीक 13 पौ इकट्ठे होने का जो हर साल सुभाग प्राप्त होंदा। मैं तो कहना होंदा 4 घंटे का पैंडा नहीं, ये 4 घंटे का पैंडा वाहिगुरु करते जाओ, एक साल यदि सतगुरु जी थानू कमाई वापिस करनगे। शहीद हमेशा ही सहाई होंदे आ। सो मैं अंत दे विच बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी सचखंड श्री दरबार साहब जी के मुख ग्रंथी उन्हों का धन्यवाद करदा। उन्होंने नाल साडे सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जगेदार श्री अकाल तख्त साहब उन्हों का बहुत धन्यवाद करना। उन्होंने नाल सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जो कि विदेश गए सी उन्हों का भी धन्यवाद करना, अज समय से पहुंच गए। उन्होंने नाल सिंह साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी साडे जिहड़े इस स्थान के मुख ग्रंथी उन्हों का धन्यवाद करना। सिख पंथ की महान जथेबंदी जिस महान जथेबंदी नूं किसी वेले 3 शहीदियां दे नाल रंगिया पंथ जिहड़ा साडे पिंडरां वालियां दी वो महान जथेबंदी जिस महान जथेबंदी ने साडे इस मौजूदा समय दे विच भी अगवाई की संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा के रूप दे विच उस जथेबंदी दे साडे मुख सेवादार सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा उन्हां दे नाल पंथ अकाली बुढ़ा दल 96 करोड़ी संत बाबा बलवीर सिंह जी संत बाबा अवतार सिंह जी बिधी जंदियां दी महान निहंग सिंहां दी सरमौत जथेबंदी और साडे जिंदा शहीद पंथ रतन जिन्होंने बड़ी बड़ी सतगुरु जी ने वाधी बख्शिश की संत बाबा निहाल सिंह जी तारना दल हरियां बेलों वाले होर भी सारे महापुरुष इतने बैठे सिंह साहब यानी जसविंदर सिंह जी साबका ग्रंथी वो भी साडे विच सुशोभित आ। बहुत सारियां होर चीज़ां इत्थे सुशोभित आ। साडे सकत्तर साहिबान सुशोभित आ ते उन्हां दे नाल साडे गुरचरण सिंह जी गरेवाल ते श्रोमणी कमेटी के बहुत सारे मैंबर साहिबान एग्जैक्टिव के मैंबर साहिबान बाबा हरि सिंह जी रंधावे वाले जिहड़े बहुत विद्वता के नाल टीका भी होण कीता उन्हां दे सपुत्र भी हाजिर आ और साडे इत्थों के सारे सत्कार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहिबान अंत दे विच उन्हां भी सारियां दा धन्नवाद करना जिन्हां ने सफरे शहादत तो लैके अज तक समुचियां सेवावां निभाईयां। मैं देखदा कोई किसी नूं चौधर का झगड़ा हो पर मैं जिले उन्हां वालों निगाह मारदा जे अमृत वेले 4 बजे सारियां सड़कां झाड़ू नाल साफ करके फिर छिड़काव करके गए नमस्कार आ उन्हां दे जगवे नूं। गुरु साहब किरपा करन सेवा पहला सिमरन फिर जिसले सेवा दे विच बंदे दा चित्त लगन लग पिया फिर सतगुरु जी गुरबाणी बख्शिश करदे गुरबाणी च चित्त लगन लगा सिमरन की दात बख्शिश करदे आ। आओ सारे जिहड़ी मैं पहला बेनती कीती सी गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी का आदर असीं करना सरकार दे नाल जिहड़े भी सतगुरु जी का सवारा जावे खड़े होइए वट पा के थोड़ा स्पेस भी छड्डिए सतगुरां दे सन्मुख भी होइए जे लागे होवांगे धक्कम धुक्की करांगे तां भी ये ठीक नहीं। ये आपां जरूर यतन करिए चाहे पिंड के गुरुद्वारा साहिबान होण चाहे शहरों के होण जदों भी सतगुरु जी सुखासन होण सतगुरु जी नूं बधाई दे के फिर आपां बधाई के पात्र बणीए। सो अंत दे विच उन्हां महान शहीदां नूं नमस्कार करदा गुरु चरणां च अरदास भी करदा सतगुरु जी सिख पंथ दे उत्ते बंधन लहरा रहे आ पर जे तुसीं बख्शिंद हो जाओ तुसीं तां उदों बख्शिंद होए जदों उत्थों आनंदपुर की धरती तो चले बिजलियां कड़कदियां मीह पै रहा सारा कुछ ठंडा पर तुसीं वो नितनेम सिखां नूं नहीं छड्डण दित्ता आसा जी की बात नहीं छड्डण दित्ती। ये अज सानूं फिर यतन करना चाहिए जिन्ना मर्जी समा होवे वध तो वध आपां पवित्र गुरबाणी नितनेमी होइए अमृत धारी होइए ठंडे बाटे की पौड़ छा के वाहिगुरु करते गुरु दियां खुशियां हासिल करके बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।